Good morning students. Today is your first class of IP and CS. We are going to discuss about Unit 2, that is in your syllabus, Introduction to Python. So let's begin. Introduction to Python. The Python programming language is a recent general purpose and higher level programming language. It is available for free and runs on pretty much every current platform, either Windows 10, 8, XP or Unix and Linux. It is also a dynamic object-oriented programming languages. What is object-oriented programming language? In which all the aspects are based on objects, and object is a real entity of any class, and a class is a group of related objects that had some state and behaviors. Python was planned in the late 1980s by Guido van Rossum in Netherlands as a successor of ABC programming language, and it soon gathered popularity, especially after it was released under GPL General Public License in version 1.6.1. There are two primary implementations of Python programming language, that is CPython and JPython. CPython is original and standard implementation of Python. Its name comes from the fact that it is created in portable ANSI C language, and its code available in www.python.org. CPython जो है वो ANSI C लैंग्वेज पे डेवलप की गई है, और ये एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन था पाइथन लैंग्वेज का. नेक्स्ट टॉपिक, JPython. JPython is alternative implementation of Python language targeted for integration with Java programming language. ये एक ऐसी लैंग्वेज थी जो जावा कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट की गई. JPython consists of Java classes. JPython में जावा के क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, जो कि आपके पाइथन प्रोग्राम को बाइट कोड में चेंज करता है, और जो उसका रिजल्टेंट बाइट कोड आता है वो फिर JVM द्वारा उसको एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज किया जाता है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन. एंड नेक्स्ट टाइप इज python.net. It is an experimental implementation of Python that is designed to allow Python program to integrate with application coded to Microsoft .NET Framework. .NET Framework एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे C# लैंग्वेज के थ्रू हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ पाइथन. First is easy to learn. It is very easy to learn how to do coding in the Python programming. That is too easy. Easy to maintain means it is very easy to maintain your applications that you have created in your Python editor. A broad standard library. One of the greatest strengths of Python is that the bulk of its library, it is very portable and cross-platform compatible on Unix, Windows and Macintosh. मतलब Python एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रखता है जिसमें कई सारे बिल्ट इन फंक्शन स्टोर होते हैं जो सारे प्लेटफॉर्म के लिए सेम रहते हैं, चाहे वो यूनिक्स हो, लाइनक्स हो या फिर विंडोज का हो. फ्री एंड ओपन सोर्स. व्हाट्स द मीन ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स? It means this software is totally free and
It can be downloaded from any site and can be used. And open source का मतलब होता है आप अपनी खुद की एप्लीकेशन या फिर एक छोटा सा प्रोग्राम या एक बड़े साइज का प्रोग्राम क्रिएट करके डेवलप करके आप उसको उस ओरिजिनल पाइथन सेटअप में अपना एक अलग का मॉड्यूल बना के ऐड कर सकते हैं। मीन्स आप अपना खुद का एक मॉड्यूल बना के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट्स द मीन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? High level programming language consists of natural language like English like words, operators, means plus minus multiplication, and symbols also. It is very easy to learn. And the second type is console based, or you know about machine language, low level language, that is in the form of 0 and 1. But Python is high level programming language, that is too easy. Next is interactive mode. Python supports interactive mode to do the coding. What's the mean of interactive mode? In interactive mode, all the statements are executed when you press enter key. Means it executes the code line by line. Next top feature is portable. What's the mean of portable? It means the program that you have created in your computer PC in which Windows are installed, but you can take the backup and the program can be executed in other platform like Linux, Unix. मतलब आप अपने प्रोग्राम को किसी भी विंडोज सिस्टम में या फिर लाइनक्स सिस्टम पे रन करा सकते हैं। इंटरप्रेटेड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इसका मतलब ये होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू आप हाई कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस, Python provides interfaces to all major commercial databases like MS Access, SQL, etc. Next, GUI means graphical user interface. Python supports GUI application that can be created and ported to many system calls, library and Windows systems. Downloading and installing the Python. You can download Python from www.python.org. Let's see. Open your browser. Type here www.python.org. Go to download section and choose here Windows. After clicking the Windows tab, you will see this interface. Here there are too many applications are available of different versions. You can download any one that you want, but it is good to choose Python 3.6.4. See this, Python 3.6.6 cannot be used on Windows XP or earlier. It means ये Windows XP के बाद के सारे Windows पे वर्क कर सकता है।
and make sure that you have to download Windows 86 executable installer. अगर आपका Windows 32 बिट का है तो आपको Windows x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 86 और 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को कर सकते हैं। जस्ट सिंपली क्लिक and the process is start. Here after downloading the Python, just simply click and follow the next button. Now come back to your topic. Interactive mode we have already discussed. When commands are read TTY, means a single command line interface program where keystroke are called and interpreted. means जैसे ही आप कमांड टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो वो इंटरप्रेटेड हो जाती है, मीन्स एग्जीक्यूट हो जाता है। द इंटरप्रेटर इज सेट टू बी इंटरैक्टिव मोड। इन इंटरैक्टिव मोड every statement is executed at the time of keystroke. And next method is script mode. Script mode is another method for writing a program using idle. आप किसी भी idle का यूज करके आप पाइथन प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड में क्रिएट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड का मतलब मीन्स आप एक नई फाइल बनाते हैं और अपने पूरे प्रोग्राम की कोडिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। वो एक साथ पूरी कमांड लाइंस को एक साथ रन करता है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडल? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। होता क्या है? इट इज़ एन ओल्डर स्टाइल एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग पाइथन प्रोग्राम्स। मतलब ये एक तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं। Our next topic is Python character set. Python program is a sequence of characters. ये एक तरह का characters का sequence होता है। When these characters are submitted to Python interpreter, means जब आप इन characters का use करते हैं तो ये interpret होने के बाद इनके various जो context या various जो features होते हैं वो perform होते हैं। ये एक कैरेक्टर नेम हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या फिर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। कैरेक्टर सेट्स आर लेटर्स, मीन्स बोथ लोअर ए टू जेड एंड डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स एंड वाइट स्पेसेस। व्हाट इज द मीन ऑफ वाइट स्पेसेस? स्लैश एन दैट इज यूज्ड फॉर चेंज द लाइन, स्लैश टी इज यूज्ड टू गिव द वन टाइप स्पेस, and this is simple space bar. Now tokens. A token is the smallest unit of the program. It can be a keyword, identifier or a variable, literals, delimiters and operators. Means Python program करते समय आप जो भी कैरेक्टर्स या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं वो छोटी से छोटी, चाहे आप एक कॉमा ही क्यों ना यूज़ कर रहे हैं, वो सब टोकन्स में आता है। अच्छा, टोकन्स आपका कीवर्ड भी हो सकता है। तो व्हाट्स द मीन ऑफ कीवर्ड? कीवर्ड्स आर द स्पेशल आइडेंटिफायर्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग। मतलब कीवर्ड्स एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग पहले से ही पाइथन प्रोग्रामिंग में फिक्स होती है। इट कैन नॉट बी चेंज, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, या फिर इनको हम वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इनके अपने खुद के मीनिंग्स होते हैं, जैसे एंड, एज, एलिफ, एल्स एंड दीज आर द मेनी कीवर्ड्स आर गिवन। तो इन सब के अपने मीनिंग्स हैं। जैसे आपका एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है जो कि कंडीशन को चेक करने के काम आता है। आपका एल्स ये भी कंडीशनल होता है, इफ भी कंडीशनल है। ग्लोबल ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए होता है। क्लास
हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे आगे टॉपिक वाइज आते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर और वेरिएबल। वेरिएबल इज नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन। मीन्स ये एक तरह से खाली बैग की तरह होता है जहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। मीन्स जैसे ही आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो ये एक मेमोरी में स्पेस ले लेता है जहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। अब वेरिएबल होता क्या है, ये एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है या फिर कई सारे कैरेक्टर्स के सेट्स हो सकते हैं और उसमें डिजिट्स भी ऐड हो सकते हैं। बट कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल का फर्स्ट लेटर वो कोई अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। एग्जाम्पल, value 1 is equal to 40.55. Here value 1 is a variable because it is a set of characters and digits. And equal, this is assignment operator, equal, that is used to assign the value. And here 45.5 is literal, वो भी इंटीजर टाइप का, हम इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब 45.5 is a literals that is assigned to value 1 variable. Next, the concept of L value and R value. From the above example, value 1 is equal to 45 or in the below this example, see this, the value 1 means that is variable refers to L value। मतलब हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू यूज किया है ये L वैल्यू होती है जिसमें कि राइट साइड से वैल्यू स्टोर होती है। बिकॉज इट रिसाइड्स इन द मेमोरी एंड इट इज़ एड्रेसेबल, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो मेमोरी में फिक्स होता है जिसको कि हम कॉल कर सकते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन। एंड इक्वल 45.5 इज द एक्सप्रेशन। इसका मतलब 45 जो है वो वेरिएबल वैल्यू 1 में स्टोर हो रही है और ये राइट टू लेफ्ट होता है, इसको हम लोग आर वैल्यू बोलते हैं। फ्रॉम द एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में समझेंगे नंबर 1 नंबर 2 ये सब एल वैल्यू में आएंगे और यहाँ पे देखिए सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो सम तो हो गया आपका एल वैल्यू एंड num1 प्लस num2 इज आर वैल्यू। Next topic is literals. Literals is also known as constant. In programming, when we assign some value into a variable or we print a value using print function, then assigned value and printed value are called literals. Means जब हम कोई वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू आपकी लिटरल्स होती है। ये किसी भी टाइप की हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, str हो सकता है। देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन टाइप। टाइप इज ऑल्सो नोन एज डेटा टाइप, मीन्स टाइप ऑफ लिटरल्स। तो इसके ये कुछ टाइप्स दिए गए हैं। जैसे पहला है आपका इंट। इंट डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर इंटीजर वैल्यू दैट कंटेन्स द इंटीजर नंबर 1, 0, 1, 2 या 25, 50, 2050। and second is float that is used for real value, means decimal points like 9.25, sorry 9.25, 2536.5, मीन्स जो भी हमारी डेसिमल पॉइंट्स वैल्यूज होती हैं वो सब फ्लोट टाइप का होता है। और नेक्स्ट है आपका इमेजिनरी। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 5j, 5.34, c, these are the complex numbers. Bool refers to boolean data type,
दिस इज लॉजिकल बूलियन मीन्स ये एक ऐसा डेटा टाइप होता है जहाँ पे केवल दो वैल्यू ही हो सकती हैं, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट इज str. str is used for string and make sure that string literals are enclosed within single quotation mark or double quotation mark. See here, this is 12. It means it should be an integer because ये 12 नंबर होता है, तो इंटीजर होना चाहिए। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये डबल कोटेशन में एनक्लोज्ड किया गया है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का होता है। या फिर हम डबल कोट में कोई एक कैरेक्टर रख दें या फिर कोई नेम रख दें तो वो भी स्ट्रिंग में ही आ जाता है। मेक श्योर जो भी वैल्यू है, चाहे वो इंटीजर हो या फिर कोई कैरेक्टर हो, अगर वो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में आती है, इसका मतलब उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। नेक्स्ट इज बाइट। बाइट इज ASCII टेक्स्ट स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। ये ASCII एक नंबर सिस्टम का पार्ट होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट टाइप इज नन। नन टाइप मीन्स नो वैल्यू, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, इसमें बस केवल एक नन लिखा होता है और कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती है। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।